بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ اچھا جی، آج سر سید احمد خان اور فرقہ نیچریت فطرت کے فرقے کے بارے میں بات کریں گے کہ یہ فرقہ کیا ہے، سر سید احمد خان کا اس کے ساتھ تعلق کیا ہے، اور اس کے بارے میں اس کا دین اسلام کے ساتھ فرق کیا ہے۔ اچھا جی، سب سے پہلے نمبر پہ بات کریں گے سر سید احمد خان کی کہ سر سید احمد خان 17 اکتوبر 1870 کو دہلی میں جو ہے نا وہ پیدا ہوئے تھے، اور ان کی وفات جو ہے وہ 27 مارچ ہے اور 1898 ہے۔ اب اس کے ساتھ ہی جو ہے نا وہ بات کرتے ہیں جی سر سید احمد خان کی جو ہے نا وہ قربانیوں کی، سر سید احمد خان کی کاموں کی، کہ سر سید احمد خان نے مسلمانوں کے لیے کیا کیا قربانیاں دی، کیا کیا کارنامے سر انجام دیے۔ اب یہ کچھ نظریہ پایا جاتا ہے کہ سر سید احمد خان جو ہیں وہ صرف اور صرف مسلمانوں کے ہی خیر خواہ تھے۔ سب جانتے ہیں کہ ہم بچوں کو، اپنے طالب علموں کو صرف اور صرف ان کا ایک ہی امیج دکھاتے ہیں۔ حقیقت یہ ہوتی ہے کہ ہر چیز کے دو امیج ہوتے ہیں، ایک پازیٹیو ہوتا ہے ایک نیگیٹو ہوتا ہے، لیکن میں یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ سر سید کے پازیٹیو اور نیگیٹو امیجز تھے، لیکن میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ ہم بچوں کو صرف اور صرف وہ امیج دکھاتے ہیں جو پاکستان کے لیے جو ہے نا وہ فیور تھا، پاکستان کے لیے بہتر تھا، مسلمانوں کے لیے بہتر تھا۔ سب جانتے ہیں کہ سر سید احمد خان سٹارٹ میں دو قومی نظریے کے خلاف تھے۔ وہ صرف اور صرف انڈین مسلمز اور ہندوز جتنے بھی تھے اقوام میں تھی یہاں پر، تمام تر اقوام کے حامی تھے۔ وہ کہتے تھے کہ ان سب کو انگریز کے ساتھ انگریزی رسم و رواج کو اپنا کر، ٹھیک ہے، وہ زندگی گزارنی چاہیے تاکہ انگریز جو ہے نا وہ انگریز اور ہندوستانی مل جل کر جو ہے نا وہ رہ سکے۔ پھر جب کنٹروورسی ہوئی 1867 کو بنارس سے، جب یہ کنٹروورسی شروع ہوئی اردو ہندی، تو اس وجہ سے پھر سر سید احمد خان تھوڑے بدلے، اور انہوں نے مسلمانوں کے لیے جو ہے نا وہ تگ شروع کی، اور مسلمانوں کے لیے انہوں نے نہ صرف تعلیمی ادارے بنائے بلکہ ان کو تعلیم دی، ان کو سیاسی، معاشی، معاشرتی، اخلاقی، روحانی تمام تر اقسام کی جو ہے نا وہ سرگرمیوں میں تمام تر اقسام کی تعلیم دی، تمام تر شعبوں میں ان کی تربیت کی، جس سے مسلمان ایک قوم کی حیثیت میں دنیا کے سامنے جو ہے نا وہ ظاہر ہوئے، نمودار ہوئے۔ اور پھر سر سید احمد خان مسلمانوں کے لیے دو قومی نظریہ دنیا کے سامنے متعارف کروانے میں جو ہے نا وہ کامیاب ہو گئے۔ اب سر سید احمد خان کا جو تعلق ہے، ہم صرف اور صرف بچوں کو صرف اور صرف ان کی یہ خدمات پڑھاتے ہیں۔ اب فرقہ نیچریت کی بات کرتے ہیں کہ فرقہ نیچر کیا ہے، جو کہ ہم پڑھتے ہیں کہ سر سید احمد خان کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ وہ فرقہ نیچر کے بانی تھے۔ اب فرقہ کیا ہے؟ فرقہ ایک مذہب کے حساب سے ایک نیا رستہ نکال دیا جاتا ہے۔ سر سید احمد خان جو ہیں وہ کہا جاتا ہے کہ فرقہ نیچریت کے جو ہے نا وہ بانی ہیں، یعنی کہ جیسے مغل سلطنت اس دنیا سے ختم ہوئی، مغل سلطنت کے اندر ایک فرقہ پہلے بھی آیا جسے دین الہی کے نام سے بھی جانتے ہیں، تو یہ سر سید احمد خان نے فرقہ نیچریت اس دنیا میں متعارف کروایا، اور اس کے جو ہے نا وہ کافی سارے پیروکار تھے، جن میں ڈپٹی نذیر احمد ہیں، نواب محسن الملک صاحب ہیں، شبلی نعمانی صاحب ہیں، الطاف حسین حالی صاحب ہیں۔ یہ بڑے بڑے لوگ بھی اسی فرقہ کے حامی نکلے، ٹھیک ہے، جو کہ سر سید کے ساتھ تھے، اور انہوں نے ہی مسلمانوں کی جو ہے نا وہ فلاح کا بیڑا بھی اٹھایا ہوا تھا۔ اب اس فرقے کے اندر اس فرقے کی حقیقت کیا ہے؟ اس فرقے کی حقیقت کو جب ہم جاننا چاہیں تو سب سے پہلے بات کریں گے کہ یہ کب شروع ہوا۔ یہ جو فرقہ تھا اس کی بنیاد رکھی گئی تھی 1855 کو، 1855 کو فرقہ نیچریت کی بنیاد رکھی گئی تھی باعث سر سید احمد خان۔ سر سید احمد خان کا پورا نام جو تھا، یا پہلا جو ان کا اوریجنل نام جو تھا، وہ سر سید احمد خان نہیں تھا، ان کا جو نام تھا وہ تھا جی سید احمد تقوی، یہ ان کا پورا نام تھا۔ بعد میں سر سید احمد خان کے نام سے وہ جو ہے نا مشہور ہوئے۔ اب سر سید احمد خان نے جو کہ یہ جو نظریہ ہے، نظریہ
फितरत, नेचरियत, फितरत जो है, इस नजरिए के नजरियात क्या हैं, ये क्या कहते हैं दीन इस्लाम के बारे में। अगर हम पहले नंबर पे बात करेंगे कि इनको मानने वालों को क्या कहते हैं, जैसे इस्लाम को मानने वाले मुसलमान हैं, क्रिश्चियनिटी को मानने वाले ईसाई हैं, ठीक है, हिंदुइज्म को मानने वाले हिंदू हैं। अब ये जो मजहब है, मजहब फितरत, फिरका फितरत, नेचरियत, ठीक है, इसके मानने वालों को नूर रतन, ठीक है, नूर रतन या नूरतन, दो अल्फाज थे, ठीक है, दोनों अल्फाज से पुकारा जाता था, या तो उनको नूर रतन बोला जाता था या नूरतन के नाम से इनको जाना जाता था। फिर अगर हम बात करते हैं इनके अकायद की, तो ये अकायद में ये कहते थे कि हकीकत जो है वो सिर्फ और सिर्फ जो है वो जो इंसानी अक्ल के मुताबिक है ना, वही बात सच है। कोई बात अगर इस इंसानी अक्ल के खिलाफ है तो वो बात सच नहीं है। यानी कि इंसान की अक्ल को ही हर बात के ऊपर जो है ना वो तरजीह देने की सर सैयद अहमद खान ये फिरका नेचरियत जो है ना वो बात करते थे कि ये सिर्फ और सिर्फ जो बात इंसानी अक्ल में आ जाए वो ठीक है, जो इंसानी अक्ल में नहीं आती वो बात ठीक नहीं है, ठीक है। अब कुरान मजीद में अल्लाह ताला की ज़ात ने ये इस्लाम के बारे में फरमाया है, जिसका तर्जुमा है, बेशक अल्लाह का पसंदीदा तरीन दीन जो है ना वो दीन इस्लाम है। सर सैयद अहमद खान इसकी वजाहत जो है ना वो अपने हिसाब से करते हैं और वो कहते हैं कि जो हमारा जो मजहब है ना वो होना चाहिए जो कि अल्लाह ताला की ज़ात के बारे में वो कहते हैं। अल्लाह के बारे में उनका नज़रिया है कि अल्लाह ताला की ज़ात एक नेचर पसंद है, ठीक है, कि वो नेचर को मानने वाले हैं। तो इसीलिए वो कहते हैं कि फिर हम भी अल्लाह जो है ना वो हिंदू, सिख, ईसाई या पारसी या मुसलमान नहीं है, अल्लाह नेचरी है। तो वानउज़ुबिल्लाह, अल्लाह ताला की ज़ात माफ़ फरमाई थी, ठीक है। तो इसलिए वो अल्लाह को किसी मजहब का पैरोकार नहीं समझते, ठीक है। अब इसके अलावा वो जो है ना वो पैगंबरों के बारे में कहते हैं कि सारे के सारे पैगंबर जो हैं वो नेचरी थे, ठीक है। वो पैगंबरों के जो मोजज़ात हैं वो भी कहते हैं जी नबूवत का जो मोजज़ा है, जो नबूवत की जो अंबिया कराम है जो अपना मोजज़ा पेश करते हैं, वो कहते हैं ये नबूवत की दलील नहीं हो सकती, ये इसको भी मानने से इनकारी हैं, ठीक है। इसके अलावा अल्लाह ताला की जो मुकद्दस किताब है कुरान मजीद, इसके बारे में इसको भी वो मानने से इनकार कहते हैं जी ये वहाँ की मुकामी ज़ुबान में ये कुरान मजीद नाज़िल किया गया था। हकीकत में ये मज़हब जो है, ये किताब जो है वो इंग्लिश में, चूँकि वो इंग्लिश को प्रायोरिटी देते थे, जैसे मुसलमानों को भी कहा कि आप जो ना वो इंग्लिश की तालीम हासिल करें, इस्लामिक जो ना एजुकेशन इस इंग्लिश की तालीम हासिल करें, साइंसी तालीम हासिल करें आप, ठीक है। तो वो इंग्लिश को क्या वो चाहते थे कि जो कुरान मजीद जो है वो इंग्लिश में नाज़िल होना चाहिए था, ठीक है, ये उनका नजरिया था। तो इसी तरह शैतान के बारे में सर सैयद अहमद शैतान के बारे में जो फिरका नेचरी के हामी जो लोग हैं वो कहते हैं कि शैतान जो है ना वो कोई फर्द नहीं है, कोई हस्ती नहीं है, कोई ज़ात नहीं है। शैतान सिर्फ और सिर्फ एक ऐसी कुव्वत है, ताकत है जो इंसान के अंदर है, जो इसको अच्छे काम करने से जो है ना वो रोकती है, मना करती है। तो ये कुव्वत जो है जो मना करती है, रोकती है, इसको वो शैतान का नाम देते हैं। शैतान बतौर एक फर्द जो है वो इस दुनिया में मौजूद नहीं है, ठीक है। फरिश्तों के बारे में कहते हैं जी जिब्राइल नामी कोई फरिश्ता नहीं है, कोई वही नहीं लेके आता रहा, बल्कि फरिश्ते नाम की मखलूक है ही नहीं। ये फिरका नेचरिया का ये भी एक नज़रिया है, ठीक है। तो क़यामत के बारे में जन्नत, जहन्नम, दोज़ख या आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफात या क़यामत के वाक़यात के बारे में इनका कोई नज़रिया नहीं है, ये इसके इनकारी हैं। इनके नज़रिए के मुताबिक ये है कि जो इस दुनिया में आ गया वो यहाँ पर जी लिया, यहाँ से ख़त्म, सब ख़त्म, कोई दूसरी ज़िंदगी मौजूद नहीं है। हालांकि इस्लाम के मुताबिक तो जन्नत जहन्नम का कॉन्सेप्ट है, हमने इस दुनिया में जो करना है उसका आगे जो है ना वो उसका जो ना वो अजर पाना है क़यामत वाले दिन जो है, ठीक है। तो लेकिन वो जो है इसके जो फ़िरक़ा नेचरियत के जो लोग हैं इसको मानने से इनकारी हैं, ठीक है। ये 4-5 चीज़ें हैं जी जो कि फ़िरक़ा नेचरियत के हैं। नंबर 1 पे हमने बात की थी कि जो फ़िरक़ा नेचरियत के जो लोग हैं ये
इनको नूरतन या नौरतन कहा जाता है। ये जो ना वो अल्लाह ताला की ज़ात को, अंबिया कराम को नेचरी मानते हैं। तौबा नाउज़ुबिल्लाह, अल्लाह ताला की ज़ात माफ़ फरमाए जी। ठीक है, तो ये अल्लाह ताला के मुक़द्दस किताब को इंग्लिश में चाहते थे। कहते इनका नज़रिए के मुताबिक ये इंग्लिश में होनी चाहिए थी। शैतान के ना होने का नज़रिया है इनका, फरिश्तों के ना होने का इनका नज़रिया है। क़यामत के दिन से ये मुनकर हैं। जैसे इस्लाम के जो अकायद हैं उन तमाम तरह अकायद का तकरीबन ये नफ़ी करते हैं। मिर्ज़ा गुलाम अहमद कादियानी के बारे में आप जानते हैं। वो सर सैयद के बारे में कहता है कि मेरी सर सैयद के साथ जो है ना 3 बातें मुश्तरका है। नंबर 1 कि वो कहते कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को का जो कि इस्लाम के मुताबिक, हमारे नज़रिए के मुताबिक कोई बाप नहीं है। ठीक है, तो वो कहते नहीं जी उनका एक बाप था। सर सैयद भी सर सैयद के साथ ये बातें मुश्तरका हैं, या कह लें कि नेचरी फ़िरका के साथ ये बातें मुश्तरका हैं। तो कहते हैं जी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को आसमान पे नहीं उठाया गया, बल्कि इसके मुताबिक इन तबारक उनके दराजात बुलंद किए गए हैं। तीसरे नंबर पे कहते हैं कि आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो मिराज हुई है वो जिस्मानी नहीं हुई, वो रूहानी हुई है। ठीक है, तो ये इससे भी वो इनकारी है। तो नौज़ुबिल्लाह, अल्लाह ताला की ज़ात माफ़ फरमाए। हर किसी का अपना नज़रिया है, हम किसी के ऊपर फोर्स नहीं करते, लेकिन बात सिर्फ इतनी है कि जिसका जो नज़रिया है वो लोगों तक उनकी मालूमात पहुंचाने के लिए ये वीडियो जो है ना वो क्रिएट की जा रही है। ठीक है जी, तो इसके अलावा सर सैयद अहमद खां की जो है वो मिर्ज़ा गुलाम अहमद कादियानी को जो ना वो अपना दोस्त, हमराह, या हम एक दूसरे को एक जैसा ही मानते हैं। अब बात आती है जी कंक्लूजन की। ठीक है, कि ये तो एक उनके नज़रियात थे सर सैयद के भी, और उन्होंने मुसलमानों के लिए भी तगोदो की। अब आती है जी हमने क्या करना है, हमारे नज़रियात क्या हैं, हम किस बात को माने, किस बात के ऊपर अमल करें। अब समझने की बात है कि हर फर्द को अल्लाह ताला की ज़ात ने आज़ाद पैदा किया है। अच्छा और बुरा 2 रास्ते हर किसी को बता दिए। अब इन रास्तों के ऊपर किसने किस तरह चलना है ये उसका इनफरादी फेल है, पर्सनल है। उन्होंने मुसलमानों के लिए कुर्बानियाँ दी, मुसलमानों के लिए काम किया, हम उनकी कदर करते हैं। वो हमारे लिए जो है ना वो मशाल-ए राह हैं। क्योंकि पाकिस्तान बनाने के लिए अगर किसी गैर मुस्लिम ने, जैसे कहा जाता है कि सिंध असम्बली के अंदर जब पाकिस्तान और इंडिया के सारे इल्हाक के बारे में वोटिंग हुई थी, तो क्रिश्चियंस ने भी पाकिस्तान के हक में जो ना वो वोट दिया था। तो हम पाकिस्तान बनाने के लिए जिसने जितनी भी तगोदो की है हम उसकी कदर करते हैं। ठीक है, तो इसलिए हमें उनके बारे में कोई नेगेटिव नज़रिया नहीं रखना। क्योंकि देखें, हम जब पर्सनल कारोबार करते हैं, बिजनेस करते हैं, दुकानदारी करते हैं, तब हमारे पास जो है वो क्रिश्चियन भी आता है, हिंदू भी आता है, जो ना वो मुसलमान भी आता है, सिख भी आता है, हर कोई आता है। हम उसके साथ कारोबार करते रहते हैं, हम तो मना नहीं करते। तो फिर उनकी ज़ात के ऊपर भी तनकीद नहीं करते। ठीक है, तो फिर हम सर सैयद अहमद खां की ज़ात के ऊपर जो है वो तनकीद करने वाले कौन होते हैं। बात सिर्फ इतनी है कि फ़िरका नेचर क्या है, फितरत का जो फ़िरका है वो क्या है, उसकी मालूमात आप तक पहुंचानी थी, जो कि पहुंचाई जा चुकी हैं। तो वीडियो जो है अगर आपको पसंद आए, ठीक है, तो कमेंट कीजिएगा। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। ठीक है, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।